السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، بھائی اور بہنوں، ماؤں اور بزرگوار، آج ایک بار بہت قریب سے پھر سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام معاملات کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ 8 تاریخ کو تلنگانہ ہائی کورٹ میں جو آرگیومنٹ تھی، اس میں صرف اور صرف ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام وکیلوں کو، لیگل ٹیم کو 5 منٹ کا وقت فراہم ہوا، لیکن اسی 5 منٹ میں ہمارے قابل اور قابل احترام وکیلوں نے جج صاحب کو اور سامنے کے وکیل کو یہ قبول کرنے پر مجبور کیا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سیاسی سازش کا شکار بنایا گیا ہے۔ اس کی سی ای او کو سازش کے طور پر پھنسایا گیا ہے۔ بہت کم وقت مل پانے کی وجہ سے جج صاحب کشمکش میں دکھائی دیے اور انہوں نے معاملات کو 16 تاریخ تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگلے 16 تاریخ کو، آئندہ منگل کو 1 گھنٹے آپ کو دستیاب ہوں گے۔ آپ اپنی باتوں کو بہتر طریقے سے جتنا بھی تفصیل سے رکھنا ہوگا آپ رکھ سکیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں اس کی سی ای او محترمہ آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو بہتر سے بہتر راحت ملنے کی امید ہے۔ بہت بہت مبارکباد ہے تمام ممبران۔ کل سب سے پہلے تو ممبئی کی میٹنگ کامیاب رہی۔ جم غفیر کی بہت بڑی تعداد دیکھی گئی اور اسی درمیان میں ایک بہت ہی خوش کرنے والی خبر ملی۔ چتور سے آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو بیل منظور ہوئی۔ وہ خوشیوں کا سما تھا، دیکھنے کے لائق تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ اب ہر آنے والے دنوں میں 15 تاریخ کو بنگلور سے، 12 تاریخ کو حیدرآباد سے اور 16 تاریخ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے مسلسل اب خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیس ایک بہتر سمت میں رواں دواں ہے۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو کورٹ ہوتے ہیں ان کے فیصلے ہائر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ابھی تک کوئی بھی ثبوت ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف نہیں مل پایا ہے، تو ایک یہ بہت بڑا بحث کا مدعا بن سکتا ہے اور بنے گا بھی، کیونکہ دوسرے کیسز کے معاملات بھی ایک کیس میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو سیم کیس اگر ہے تو اس کے معاملات آرگومنٹ میں ضرور رکھے جائیں گے کہ فلاں جگہ سے ہم کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے بیل منظور کی گئی ہے، لہذا آنریبل جج صاحب ہماری سی ای او، ہیرا گروپ کی سی ای او محترمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو جلد از جلد رہائی دی جائے اور کمپنی کو پوری طرح سے مکمل طریقے سے ان کو راحت دی جائے، تاکہ تمام انویسٹر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگوں کو راحت دینے کا کام کیا جائے۔ اچھا، اس درمیان میں ایک بہت ہی اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کچھ کمپلینر جو ہیں جو اپنے کمپلین واپس لے رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں لے رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے ہیں ایسا کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا ثبوت کھل کر کے اپنے سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں نے اول دن میں ایف آئی آر کیا ہے وہ کون لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اول دن میں ایف آئی آر کیا ہے وہ پیڈ یعنی کہ ان کو ادا کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس کو ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پہلے انویسٹ کریں۔ جب آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا لانچ کیا، اس وقت دشمنوں کی طرف سے سم کروڑس یعنی کہ 25 کروڑ روپے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ کو جس طرح سے ہمارے شیطان کہیں گے اسی طرح سے آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کہیں گے 51 کروڑ روپے کسی کو انویسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو آپ دوراندیشی سے کام لیں، یا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نام نہاد لیڈر جو ہیں وہ آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی وجہ سے ہار جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کتنے بڑا نقصان ہوگا۔
एक साल में कई सौ करोड़ का नुकसान होता है उनको, कई सौ करोड़ को। अगर उस कई सौ करोड़ के नुकसान से जो नाजायज़ तरीके से वो कमाते हैं, अगर उस कई सौ करोड़ को 50 एक करोड़ 100 एक करोड़ खर्चा करके बचाया जा सके, एक साल में अगर कई सौ करोड़ का नुकसान होता है तो बताइए 5 साल में जब तक ये मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं उतने दिनों में कितना नुकसान होगा, आपको अंदाज़ा है? बहुत बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है। मिसाल के तौर पर आपा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने जब कर्नाटका में इलेक्शन लड़ा, उस वक्त इन नाम नहाद पार्टियों को वहाँ से भाग खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा। एक आंकड़े के मुताबिक बताते हैं कि इस मुखिया को 250 करोड़ रुपए का नुकसान उठा करके वहाँ से भागना पड़ा। 250 करोड़ का नुकसान उठाकर भागना पड़ा था आपा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा की वजह से। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तेलंगाना में, हैदराबाद में अगर ये बैरिस्टर हार जाता तो उसका कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान होता। लिहाजा उसने क्या किया कि आपा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा से खौफ खाकर उनको फंसाने की गरज से लोगों में 50 करोड़ के करीब रुपए बांटे गए, तकसीम किए गए। 5, 2, 3, 4 लाख रुपए लोगों को दिए गए और ये कहा गया कि इसको आप इन्वेस्ट करो, जब तक फ़ायदा आता है तब तक आप फ़ायदा लो, और जब फ़ायदा आना बंद हो जाता है आपको FIR करने के लिए कहा जाएगा, जैसा करने के लिए कहा जाएगा आप लोग कीजिएगा। तो उस वक्त का इंतज़ार था सब लोगों को। आप देखिए जितने भी इब्तिदा के इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी अव्वले वक्त के कंप्लेनर हैं, उनके अमाउंट्स जो इन्वेस्ट किए गए कंपनी में एक ही वक्त के हैं। आप डॉक्यूमेंट्स उठा करके देख लीजिए, आपको मेरी बात 100% हकीकत मिलेगी। अब ऐसे में उन लोगों को जब कहा गया कि अब आप लोग FIR कर दें, तो उन लोगों ने FIR किया क्योंकि वो पेड है। ऐसे में कुछ ऐसे दोस्त जो कि सही ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी देखा कि भाई ये देखो इन्वेस्टर जो है कंप्लेन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आनन फानन में FIR कर दिया। तो ऐसे में बेवकूफ़ कौन बना? बेवकूफ़ वही बना ना जिनके अपने पैसे लगे हैं। देखिए कंप्लेन तो वो वापस नहीं लेंगे जिनको इसी काम के लिए पैसे दिए गए हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि अगर आप हमारे प्रोसेस को पूरा करोगे और पूरा करने के बाद वो पैसे तुम्हारे निकलते हैं हमारे तमाम प्रोसेस के बाद, तो वो पैसे आपके। तो अब तमाम कंप्लेनर ये अपने आप का मुआयना करें कि क्या उन्हें पैसा दिया गया है। अगर उन्हें पैसा दिया गया है कंप्लेन करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो ठीक है, उनका तो टारगेट यही है। इंशाल्लाह हिंदुस्तान का कानून बहुत आला है, बहुत ही ऊंचा है, हमें उससे पूरी उम्मीद है, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर जिन लोगों को पेड नहीं किया गया है, मिसाल के तौर पर ज़ैद, अबू बकर, उमर जो हैं, उनको पैसे नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने कंप्लेन किया है, तो इसका मतलब है कि उनका बेवकूफ़ बन गया ना। तो देखिए आप लोगों में से कौन ऐसे साहब हैं जो पैसा ना पाने के बावजूद भी कंप्लेन किया है, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ बनाए गए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने आगे से पैसा हासिल किया है दुश्मनों से और इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें कंप्लेन करने के लिए कहा गया, वो तो उनकी मजबूरी है, वो तो यही करेंगे। इंशाल्लाह उन लोगों से भी निपटा जाएगा। लेकिन अब अंदाज़ा करने का काम ये है कि आप लोगों में से कौन भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने ओरिजिनल पैसे होने के बावजूद कंप्लेन किए हैं। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कोई अपने आप को पाता है तो सबसे पहले उसको अपने कंप्लेन वापस लेना चाहिए, क्योंकि आपके अपने पैसे हैं, अपनी कमाई के, खून पसीने की कमाई है। आप में और उन पेड में, ओरिजिनल जिन लोगों के अपने कमाई के पैसे हैं आप में, और उन जिनको पैसा दिया गया है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जब कंप्लेन, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपने पैसे क्यों फंसाने जा रहे हो? तो लिहाजा देखिए, आप लोगों को एक बहुत बड़ी साजिश को मैंने बता दिया। अब आप लोगों की अक्लमंदी, समझदारी, समझबूझ इस बात की इजाज़त आपको देती है कि यूं ही अपने कंप्लेन को बरकरार रखें। अगर अपने पैसे हैं आपके, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि आप
उस पैसे को कंप्लेन में फंसा करके 10-20 साल आप उसको यूं ही ख़राब करेंगे। आपके अपने कमाई के खून पसीने के पैसे हैं। मेरे ख़्याल से आप लोगों को कंप्लेन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत करीब है। इंशाअल्लाह ताला अपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक एक करके बरी हो जाएंगी, क्योंकि एक जगह से अगर उनको बेल मिलती है तो दूसरी अदालत क्यों नहीं देती है, ये सोचने का मकाम है। और हर हालत में देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के केस में अगर सेम केस है दूसरे किसी शख्स का, और अगर उसको बेल दी जाती है, उसको राहत दी जाती है, तो वो भी देखा जाता है दूसरे के केस में, एक का दूसरे में देखा जाता है। अगर सेम केस है, सेम इल्ज़ाम है, सेम मुलजिम है, तो उसका क्यों नहीं देखा जाएगा? देखा जाता है। लिहाजा आप लोग देख लीजिए, आप पेड हैं, पेड कंप्लेनर हैं, आपको पैसे दिए गए हैं कंप्लेन करने के लिए, या आपने बेवकूफ़ी में आकर के लोगों को ये देखा कि धारे इधर ही बह रहे हैं तो उधर ही चल निकले। तो लिहाजा थोड़ा सा इस बात की, मेरी बातों की गहराई को समझिए। बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन सिर्फ इशारा किया जाता है। इशारा अक्लमंदों के लिए काफ़ी होता है। मैं आप तमाम लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।